Hello, class 11 students. Good morning. Today we are going to discuss the parallelogram method. First for subtraction of vectors. Subtraction of vectors is nothing but addition of vectors with negative vector. Sum of two vectors in which one vector is positive and another vector is negative, then that will become subtraction of vectors. That is a minus b equal to a minus b, a plus minus b. It is shown in figure. The vector minus b is added to vector a to get r2 equal to a minus b. The vector r1 is a plus b. Figure 4.5 you can see here is there. This I already made and shown you. यहाँ से a यहाँ से b वेक्टर है तो ये एडिशन हो जाएगा a प्लस b. इफ़ we make it नेगेटिव, इसका अपोजिट डायरेक्शन बनाएंगे तो ये माइनस b हो जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेक्टर ये इधर है, ये इधर बनाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा. तो इन दिस वे वी से ए माइनस बी, दैट रिजल्टेंट इज ए माइनस बी. So r2 is a minus b and r1 is addition of vectors a plus b and r2 is subtraction of vectors a minus b. So what you understand, subtraction means only you have to make the one vector in the opposite direction and that will make the subtraction. Here we can use the parallelogram method to find the sum of two vectors. Suppose we have two vectors a and b. To add these vectors, we bring their tails to a common region O as shown in figure 4.6a. Like triangle method, another method is there, parallelogram method. In this what we'll do, दोनों की टिप को एक जगह ले आएंगे. एक वेक्टर है b, एक वेक्टर है, दोनों की टिप को ओरिजिन पे ज्वाइन कर देंगे. To add these vectors, we bring their tails common region, then we draw a line from the head of A parallel to B. अब ये इसको यहाँ पे A के पैरेलल टू B, A के हेड से लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से पैरेलल A के पैरेलल B के हेड से लाइन ड्रॉ करना है और B के पैरेलल A के हेड से लाइन ड्रॉ करना है. Simply this way your parallelogram will completed. And see further, B parallel to A, complete the parallelogram OQSP. इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा. नाउ वी जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस टू द ओरिजिन. इस तरह से ये यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा. सो दिस विल बी ए पैरेललोग्राम. नाउ जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दैट विल बी द डायगोनल टू द पैरेललोग्राम. Diagonal to the parallelogram, the triangle law is used to obtain the resultant of A and B. We see that the two methods yield the same result. अब इसमें जो ये R है that will give you the resultant A और B का. So A plus B equal to R. In this way you can draw. And this is triangle method से A B that will give you the resultant. Okay. So similarly इस parallelogram को भी हम अगर complete करेंगे तो B plus A will give you R as resultant. So parallelogram method of factorization is equivalent to the triangle method. ये parallelogram method है और ये triangle method है. So these both are equivalent. Thus the two methods are equivalent. Then we will study this example. Rain is falling vertically. This is very important example. You can see rain is falling vertically with a speed of 35 मीटर पर सेकेंड. 35 मीटर पर सेकेंड से रेन फॉल हो रही है तो उसके लिए हमने एक वेक्टर बनाया वी आर. विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है, देखिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी. तो दिस वे दैट वेलोसिटी वेक्टर विल ड्रॉ. इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप. बस स्टॉप पे यहाँ पे बॉय खड़ा हुआ है. शुड बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड इट्स अम्ब्रेला. तो इसको कौन सी डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला यूज़ करना है ताकि ये अम्ब्रेला उड़े नहीं. तो यहाँ पे रेन की डायरेक्शन इस तरफ है और बॉयज़ यहाँ खड़ा है और विंड की डायरेक्शन उसकी इस तरफ है. दिस डायग्राम यू हैव मेड इजीली. देन एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड टू वेक्टर्स वेलोसिटी वेक्टर्स आर देयर. देयर रिजल्टेंट विल बी मेक ही फ्रॉम हियर. देन दिस पैरेललोग्राम विल गेट कंप्लीटेड. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल. किस एंगल पे इसको अम्ब्रेला खड़ा करना है. वेलोसिटी ऑफ द रेन एंड द विंड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स वी आर एंड वी डब्ल्यू.
in the direction specified by the problem. Using the rule of vector addition, we see the resultant of VR and VW is R. इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे. रिजल्टेंट कैसे होगा? VR² प्लस VW² का रूट, दैट विल गिव यू रिजल्टेंट. फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं. A² इक्वल टू AX² प्लस AY². सो सिमिलरली AY² प्लस AX², दैट विल गिव यू रिजल्टेंट. डायरेक्शन थीटा फाइंड करना है. tan थीटा इज इक्वल टू VW बाय VR. tan थीटा इज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर VW हो जाएगा और उसका बेस VR है. सो VW बाय VR, इन दिस यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू 0.343. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343, 19 डिग्री. Therefore this you can calculate from the calculator या फिर log table से भी निकाल सकते हैं. Therefore the boy should hold his umbrella in the vertical plane at angle of about 19 degree with the vertical towards the east. ईस्ट की तरफ से विंड चल रही है तो ईस्ट इस तरफ अगर हम अम्ब्रेला रखेंगे वेस्ट की तरफ तो उड़ जाएगा. ईस्ट की तरफ अम्ब्रेला इस तरफ से रखना है, ऐसे रखना पड़ेगा उसको, ईस्ट की तरफ इस तरफ, एंड सो दैट विंड विल गेट बी स्टॉप्ड and that angle will be 19 degree. Next we will study the resolution of vectors. How to resolve a vector into its two components. A and B, two non-zero vectors in a plane with different directions, and let A be another vector in same plane. A can be expressed as a sum of two vectors. जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, इनको आपको एक ही प्लेन में इस वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करना है, एक्सप्रेस करना है. तो किस तरह से करेंगे? One obtained by expresses sum of two vectors. One obtained by multiplying A by a real number and other obtained by multiplying B by another real number. इसके साथ मिलाना है तो सपोज इसको हमने कुछ बड़ा कर दिया, लैम्डा A हो गया, and this will be mu B, and this vector in a similar plane you put. So ये क्या हो जाएगा? लैम्डा A plus mu B. This is the resultant of its A vector. In this way you can represent the A vector in two different vectors in a single plane. Using similar method you can resolve a vector in coordinate system. XY डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं सिमिलर मेथड से. रिजॉल्विंग में ये एक यूनिट वेक्टर यूज़ होगा. ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब आपके जो वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है उसको शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है. यूनिट वेक्टर इज अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए तीन है. ये जो होते हैं वो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है. इसको डिनोट करते हैं ऊपर कैप बना के. आई जो वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन डिनोट करता है, जे वाई डायरेक्शन और के जेड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस. सो यू अंडरस्टूड दिस थ्री वेक्टर्स आर unit vectors with magnitude 1 unit magnitude and points in a particular direction x y z, and dimension it has no dimension and unit. इसकी dimension नहीं होती, unit भी नहीं होती, सिर्फ magnitude होता है 1. These three vectors are perpendicular to each other. एक ये x y z i j k तीनों perpendicular होते हैं एक दूसरे के. इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. This you can understand. फर्दर किसी भी यूनिट वेक्टर में हम रियल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर के साथ में वो यूनिट वेक्टर हम शो करेंगे. वी कैन नाउ रिजॉल्व ए वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ आई जे के. अब किसी भी एक वेक्टर को हम तीन डायरेक्शन के कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे अभी दो डायरेक्शन दिए हैं क्योंकि पहले हम टू डायमेंशन पढ़ेंगे, तो टू डायमेंशन में दो ही रहती हैं. ये एक मेन वेक्टर है, उसको दो डिसॉल्व कंपोनेंट्स रहेंगे, ए एक्स आई और ए वाई जे. एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस. दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स डायरेक्शन. सो हियर अगेन बाय पैरेललोग्राम लॉ a1 प्लस a2, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया. a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a. a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a. दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू a1 axi, a2 इज इक्वल टू ayj. सो इनको ऐड कर देंगे तो a इज इक्वल टू axi प्लस ayj. दैट इज क्लियर फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ. देन वी नो बाय
एंगल थीटा ए एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस है ए एक्स बाय हाइपोटेन्यूस ए, इसे होता है कॉस थीटा की वैल्यू, तो ए इधर आ जाएगा तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर, ये ए वाई हो गया क्योंकि ये भी ए वाई है, ए वाई बाय ए हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इज ए वाई बाय ए। In this way you can calculate these values and further you see मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू यही वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, इसके अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड इस तरफ से निकालेंगे और थीटा इस तरफ से निकालेंगे। So you just go through it, further you will discuss in the next class. Thank you.